और सीधे अब आपको दिखाते सदन की कार्यवाही, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत हो रही। देखिए, माननीय सदस्यगण, 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में सुश्री हरजिंदर कौर तथा श्री गुरवीर सिंह रजत पदक जीतकर इस प्रतियोगिता में भारत का गौरव बढ़ाया है। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों, उनके कोच एवं टीम इंडिया को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। प्रश्नकाल सच्चिदानंदार मैंने पहले भी कहा, माननीय सदस्य, फिर आपसे आग्रह करता हूं, प्रश्नकाल के अंदर प्रश्नकाल को कभी बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का होता है, सरकार की जवाबदेही होती है। कई माननीय सदस्य मेरे पास आकर आग्रह किया है कि हमारा बहुत कठिनाइयों से प्रश्न आया है और कुछ माननीय सदस्य जानबूझकर प्रश्न को बाधित करते हैं। मैंने आपको हर विषय, हर मुद्दे पर पर्याप्त समय दिया है, लेकिन इस तरीके से आप सदस्यों के प्रश्नकाल के समय बाधित करो, नियोजित तरीके से सदन को वेदान केदा करो, ये उचित नहीं है। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि प्लीज आप अपनी अपनी सीट पर बैठिए। प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा में भाग लीजिए। प्लीज प्लीज बैठिए। इकरा चौधरी जी मेरे पास आई, प्रश्नकाल चलने दो। सच्चिदानंद जी मेरे पास आए, कई माननीय सदस्य मेरे पास आए। आप माननीय सदस्यों के हक को नहीं मार सकते, ये तरीका उचित नहीं है। आप अगर सदन को वैधान करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है 12 बजे तक के लिए। एक बार फिर से यहां पर हंगामा और लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित यहां पर कर दी गई है। तो लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। ये देखिए, तस्वीरें अभी आ रही थी और आपने देखा कि किस तरह से सदन में एक बार फिर से बार-बार लोकसभा स्पीकर की तरफ से 2 members from amongst the members of the House to the said joint committee to fill the vacancies. Thank you, sir. The motion moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Now matters rise with permission. You all take your seat. You all take your seat. Then only I will ask him to speak. If you all take your seat, then I will ask him to speak. Sir, Mike, sir. Sir, thank you very much, sir. Sir, I crave the indulgence of all the members cutting across the party lines. This is not a partisan issue, it's a bipartisan issue. Sir, we have a parliamentary democracy based on multi-party system. Yesterday, an unfortunate incident happened. A Delhi police team barged into the headquarters of CPM, which is a national political party. You know that, sir. Camera not showing, sir. Why are they camera playing like this? No. You address to me. You address to me, Sir. You address to me. Sir. Yesterday, Delhi police team barged into AKG Bhavan. You have huge respect. You have told many a time respect for AK Gopalan. Sir, it was to arrest Aishi Ghosh, Madam Nirmala ji, who is a former JNU student union president.
Her only mistake was that she participated in Jantar Mantar agitation. Leave it, sir. Sir, I happen to be there, sir. I want your indulgence. Yashankarji, you also should. I happened to go there. I asked the Delhi police team, why did you barge into the office of a national political party? Then they said they want to arrest Aishi Ghosh, who is here. And I asked, what is the reason? They said there is a case pending against her. And I asked about the case. 2021 case with regard to certain protests in JNU campus. Sir, then I told them, sir, please listen. Sir, this is a, Shamik, please. Sir, this is a bipartisan issue. I have no problem in Delhi police. I have no problem Delhi police have. Sir, the shocking thing is that they came without uniform. Now you conclude. Sir, Now you conclude, please. 1997 SOP of Delhi police. The Delhi police has to be identified. My demand is that they want to send the fear across the youngsters. Now you conclude. I want a statement from the Honorable Home Minister as to what has happened. Rajiv Bhattacharya ji. Now, श्रीमान राजीव भट्टाचार्य जी। माननीय सभापति महोदय, आप जानते होंगे कि उत्तर पूर्वी का एक राज्य है त्रिपुरा, जो पिछले सरकार द्वारा शासित कांग्रेस और सीपीएम ने बहुत सालों से ये शासन किया है। आप जिन्होंने जयंती की बात करते हैं, लेकिन उधर का युवा का भविष्य क्या होगा? उनका रोजगार क्या होगा? उनका क्या साधन क्या होगा रोजगार का? ये कांग्रेस और सीपीएम का सरकार रहते हुए कुछ सुधार नहीं हुआ। और 2014 से आजादी के बाद से मोदी सरकार बनने के बाद उत्तर पूर्वीय क्षेत्रों में खास करके त्रिपुरा की आम जनता हो, जनजाति क्षेत्र हो, मोदी जी ने विकास का कोई कसर नहीं छोड़ा। आपके माध्यम से सरकार को अवगत करना चाहता हूँ। 30% जनजातीय क्षेत्रों का जनजातियों का बास है। इसमें मोदी जी द्वारा स्किल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री जातीय आदिवासी जनजाति जुबा को खड़ा करने के लिए मैं आपके माध्यम से सरकार के पास अपील करना चाहता हूँ कि दिस इज नॉट करेक्ट। और अक्षय राय संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दूसरी तरफ हम राज्यसभा की भी कार्यवाही लगातार देख रहे हैं, जहां पर विपक्ष हंगामा कर रहा है। और देखिए, उम्मीद जताई जा रही थी कि हंगामा कम से कम 11 बजे तो होगा, क्योंकि विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर के नोटिस दिया था। एक तो चर्चा कराने की मांग की थी कि जिस तरह से युवाओं पर यहाँ दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ, पश्चिम बंगाल साथ ही साथ बिहार में भी जिस तरह से बल प्रयोग किया गया, उसको लेकर के, और खास करके राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर के सरकार से चर्चा कराने की मांग कर रहा था। इसलिए नोटिस दिए गए थे लोकसभा और राज्यसभा में। तो ये उम्मीद तो की जा रही थी कि हंगामा होगा, और लेकिन ये माना जा रहा है कि 12 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। 12 बजे जब लोकसभा की बैठक होगी तो फिर चर्चा जो कल शुरू हुई थी, खास करके एग्जामिनेशन बिल को लेकर के, उस पर चर्चा आगे बढ़ सकती है, और उसमें तमाम बड़े नेता उसमें बोलते हुए दिखेंगे। आज राहुल गांधी और
ये माना जा रहा है कि बड़े मंत्रियों का भी यहाँ पर संबोधन देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी बोलने की उम्मीद की जा रही है। तो देखना दिलचस्प ये रहेगा कि इस विधेयक को कैसे पास कराया जा सकता है, क्या ध्वनिमत से होता है या फिर सभी जो सदस्य हैं उस पर पार्टिसिपेशन करते हैं। ये माना जा रहा है कि वोटिंग होगी और वोटिंग के जरिए ही इस बिल को पास किया जाएगा और राज्यसभा में भी इसको आज टेबल किया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि आज चर्चा होगी, बट मुझे लगता है कि 12 बजे जब सदन की कार्रवाई दूसरी बार जब शुरू होगी लोकसभा की, तो वहां पर फिर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल शोर शराबे के कारण विपक्ष के लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हालांकि राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है, लेकिन वहां भी शोर शराबा देखने को मिल रहा है। कई अन्य मुद्दों को लेकर के भी विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है। बिल्कुल अक्षय, और एंटी पेपर लीक बिल पर संसद में चल रही बहस अब अहम मोड़ पर भी पहुंच गई है। राहुल गांधी भी आज हिस्सा लेंगे, यानी कि अपनी बात रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज भी सरकार और विपक्ष में तीखी बहस देखने को मिल सकती है। अल्टीमेटली कारण इसका यही है कि जिस तरह से पेपर लीक के मामले सामने आए, आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला, जिस तरह से दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, ये माना गया कि सरकार भी चाहती है कि जो अन्य राज्यों में भी पेपर लीक के मामले सामने आए हैं उस पर भी चर्चा हो। अल्टीमेटली क्या है कि सभी जो सांसद हैं अपने अपने तरीके से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं।